हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो विच असी पढ़ांगे क्लास 10th का चैप्टर लाइट रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश, परावर्तन अते अपवर्तन। मेरे इसे चैप्टर की प्रीवियस वीडियो अगर तुसी नहीं वेखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे विच उसका लिंक है, उस पर क्लिक करो तो वो वीडियो देखो। उस वीडियो के एंड दे विच मैं ਤੁਹਾਨੂੰ परावर्तन ਅਤੇ अपवर्तन ਦੇ ਬਾਰੇ डिफरेंस ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਰਰ ਅਤੇ ਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਪਰਾਵਰਤਨ ਅਤੇ अपवर्तन। ਸੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਵਰਤਨ ਅਤੇ अपवर्तन ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪਰਾਵਰਤਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਵਰਤਨ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਾਵਰਤਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਪਰਾਵਰਤਨ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮਿਰਰਸ ਜਾਂ ਦਰਪਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ? ਪਰਾਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਪਵਰਤਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ ਆਫ ਸਟਾਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਅਪਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ? अपवर्तन। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ ਰੱਖੀਏ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਬੈਂਡ ਹੋਈ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਵਿਖੇਗੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੈਟ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ? अपवर्तन। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪੈਨਸਿਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੇਢੀ ਕਿਉਂ ਵਿਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੈਂਡ ਕਿਉਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਪਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੀ ਮਿਰਰਸ ਅਤੇ ਲੈਂਸਸ, ਦਰਪਣ ਅਤੇ ਲੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੀ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਤੇ अपवर्तन ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੋਲਾਕਾਰ ਲੈਂਸ। ਨਾਓ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਰਪਣ ਜਾਂ ਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਸ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਦਰਪਣ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਪਣ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਮਿਰਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਮੇਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਮੇਜ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ? ਯੈਸ, ਪਰਾਵਰਤਨ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੌਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਤੇ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੌਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਵੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਇਮੇਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਇਨਵਰਟਿਡ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤਲ
उत्तल दर्पण की गल करिए, उत्तल दर्पण दे विच तुहाडा प्रतिबिंब छोटा अते सीधा बनता है। इनू असीं अगे विस्तार नाल पढ़ांगे। तां जिहड़े भी दर्पण ने, ये 3 दर्पण ने, समतल, उत्तल, अवतल, इन्हां दे विच बनन वाले प्रतिबिंब वखरे ने, राइट। ते ये प्रतिबिंब क्यों बनते हैं? यह प्रकाश के परावर्तन करके बनते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन करके प्रतिबिंब बनते हैं समतल, उत्तल अते अवतल दर्पण दे विच। इसलिए असी इन्हां नूं पढ़ांगे ताकि असी प्रकाश के परावर्तन नूं चंगी तरह समझ सकीए। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अपवर्तन, तो अपवर्तन नूं समझण लई हुण सानूं लैंस की लोड़ है। मैगनीफाइंग लैंस तुसीं वेखिया होएगा, उहदे विच लैंस हुंदा है। टैलीस्कोप्स दे विच लैंस हुंदे ने। साडे चश्मे, साडा आए दे विच जिहड़ा लैंस है वो एक नैचुरल लैंस है, कॉन्वैक्स लैंस है। तुसीं जिहड़े स्पैक्टिकल्स पांदे हो, वो स्पैक्टिकल्स जे किसी दी दूर दी निगाह खराब है जां नेड़े दी निगाह खराब है तो उस स्पैक्टिकल्स दे विच लैंस हुंदे ने, राइट। तो साडे डेली रोज़ाना जीवन विच लैंसिस यूज़ हुंदे ने। ते वो लैंस ने जिहड़े ओह लाइट दे किस प्रिंसीपल ते काम करदे ने? अपवर्तन। इसलिए अपवर्तन नूं समझण लई असीं लैंस बारे पढ़ांगे। सो देखो जी, इधर हुण मैं अपने इस वाइट बोर्ड नूं डिवाइड कर दिता। इस पासे मैं परावर्तन लिखिया है ते इस पासे मैं अपवर्तन लिखिया है, क्योंकि असी दोनों नूं इकट्ठे ही समझण दी कोशिश करांगे। 10th क्लास के स्टूडेंट्स नूं इस चैप्टर नूं समझना थोड़ा जा उन्हां नूं कई बार मुश्किल लगता है, क्योंकि सानूं लगदा असीं पहला परावर्तन पढ़ रहे ने, फिर उहदे दर्पण पढ़ रहे ने, फिर उन्हां द्वारे बने प्रतिबिंब पढ़ रहे ने, ते जद तक असीं अपवर्तन तक पहुँचते ने ते उन्हां बारे पढ़ना शुरू करते हैं, असीं परावर्तन दे नाल कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उस कन्फ्यूजन नूं खत्म करन लई असीं कोशिश करते हैं कि असीं इस तरीके नाल पढ़ीए। असीं परावर्तन अते अपवर्तन नूं इकट्ठे पढ़ के उन्हां दे विच डिफरेंस समझ के उन्हां नूं समझना साडे लई ईजी हो जाएगा। सो परावर्तन नूं समझण लई असीं गोलाकार दर्पण पढ़ांगे। ते मेरी प्रीवियस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दस्सिया भी गोलाकार दर्पण 2 तरह दे हुंदे ने, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। हुण इस समतल दर्पण तो समतल दर्पण है, असीं गोलाकार दर्पण पढ़ांगे। ते अपवर्तन नूं समझण लई असीं पढ़ांगे लैंस। उत्तल लैंस, अवतल लैंस। ठीक है जी। असी मैं इत्थे हुण डायग्राम्स भी ड्रॉ करांगी दर्पण अते लैंस दे। इन्हां नूं असीं रे डायग्राम्स कहंदे ने, रेखा चित्र। अवतल दर्पण, याद रखना है कि दर्पण की एक सतह परावर्तित सतह हुंदी है ते दूजी पॉलिश्ड। ये सतह परावर्तित सतह दर्शा रही है, तो जिहड़ियां मैं छोटियां लाइन्स ड्रॉ करियां ने ये पॉलिश्ड सरफेस दर्शा रही है। ते उत्तल दर्पण लई उत्तल लैंस, अवतल लैंस। तो इत्थों तुसीं याद रखना है कि इन्हां दे डायग्राम्स किवें दिसदे ने। अवतल दर्पण विच परावर्तित सतह अंदर वाल वक्र हुंदी है। द रिफ्लैक्टेड सरफेस इज कर्व्ड इनसाइड। यू कैन सी द रिफ्लैक्टेड सरफेस, ये रिफ्लैक्टेड सरफेस है, इहदे उत्ते किरण पै के रिफ्लैक्ट हो जाती है। इस उत्ते किरण पएगी प्रकाश की ते रिफ्लैक्ट हो जाएगी। ते इधर किहड़ी है साडी रिफ्लैक्टेड सरफेस? ए वाली, इस ते पएगी ते रिफ्लैक्ट हो जाएगी। सो अवतल दर्पण विच जिहड़ी परावर्तिक सतह है ओह अंदर वाल वक्र यानी कि अंदर वाल कर्व्ड हुंदी है। उत्तल दर्पण विच रिफ्लैक्टेड सरफेस इज कर्व्ड आउटसाइड। परावर्तित सतह बाहर वाल वक्र हुंदी है।
ठीक है जी। जे तुसी अपने लैब दे विच भी मिरर्स या लेंसेस तुसी वेखे होणगे, क्योंकि 8th क्लास दे विच भी साडे कोल इह चैप्टर है, ते तुसी टच करके फील करके दस सकते हो कि इस कॉनकेव मिरर केड़ा है, कॉन्वैक्स केड़ा है, लेंस केड़े ने। सो उत्तल लेंस दा असी की डेफिनेशन दिंदे आ, वो लेंस जिहड़ा विचकारों मोटा अते सिरों पतला होवे, विचकारों मोटा अते सिरों पतला होवे, ते अवतल लेंस विचकारों पतला अते सिरों मोटा होवे। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। आई होप दिस इज क्लीयर टू यू। एक गल मैं चाहनी हाँ कि तुसी इत्थे नोट करो, मैं अवतल दर्पण लिखिया, उत्तल दर्पण लिखिया, अवतल लेंस लिखिया ते उत्तल, नो, मैं उत्तल लेंस अते अवतल लेंस लिखिया। और इस पिछे भी एक रीज़न है जो मैं चाहनी हाँ कि तुसी वो चीज़ याद रखनी है। ये मैं पहला उत्तल लेंस क्यों लिख दिता, मैं इत्थे अवतल लेंस भी पहला लिख सकती सी, बट सिर्फ एक चीज़ तुहानू दस्सण लई कि जदों असी अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबां नू समझांगे ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ही उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबां नू भी समझांगे। क्यों? बिकॉज ਇਹਦੇ द्वारा बनाए प्रतिबिंब, उत्तल लेंस द्वारा बनाए प्रतिबिंब ਅਤੇ अवतल दर्पण द्वारा बनाए प्रतिबिंबां ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ पढ़ांगे यू विल गैट कन्फ्यूज्ड, इकट्ठे पढ़ के समझांगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ईजी होएगा। ਉਵੇਂ ही ਜਦੋਂ उत्तल दर्पण ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही असी अवतल लेंस की गल करांगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों द्वारा बने प्रतिबिंबां की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंदियां ने। सो हमेशा ये गल याद रखनी है कि ये ओपोजिट चलता है, अवतल दर्पण ते उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण अते अवतल लेंस। नैक्सट, हुण अवतल दर्पण है जिहड़ा जां उत्तल दर्पण है, ये बनदा कित्थों है? ये एक गोले दा भाग है। तुसी अपनी बुक्स दे विच जदों पढ़ोगे तो तुसी एनकाउंटर करोगे ये एक लाइन विच सेज दैट एक गोले दा ही भाग ने। सो इसनूं असी किवें समझ सकते हाँ कि एक गोले दा ही भाग किवें ने, ते इहदे नाल बाकी रिलेटिड जिहड़ियां टर्म्स ने वो भी आपां समझदे हैं, राइट। सो ये है मेरे कोल, इट्स नॉट अ स्फीयर, सर्कल है, लेकिन ये सानू समझण लई हेल्प करेगा। एज्यूम करो कि यह एक गोला है, ते मैं इत्थे एक सर्कल ड्रॉ कर दिन्नी हां, ते इत्थे भी तुसीं अपने बुक्स विच पढ़ोगे कि अवतल दर्पण की परावर्तिक सतह एक गोले का भाग है, उत्तल दर्पण की परावर्तिक सतह एक गोले का भाग है। अवतल दर्पण की परावर्तिक सतह एक गोले का भाग है, उत्तल दर्पण की परावर्तिक सतह एक गोले का भाग है। तो जदों तुसी लेंस बारे पढ़ोगे उदों भी तुसी ये पढ़ोगे कि लेंस दो गोलियां तो मिलके बनता है, चाहे वो उत्तल लेंस है चाहे वो अवतल लेंस है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अगेन देखो हुण क्या तुसी देख सकते हो कि इस गोले तो अवतल दर्पण बनाया जा सकता है? यस, इफ यू कट इट फ्रॉम द सेंटर, इनू सेंटर तो कट कर दिए तो इसकी इस सतह नू पॉलिश कर दिए तो ये साडी रिफ्लैक्टिंग सरफेस बन जाती है। सी राइट, तो उत्तल दर्पण लई सानू की करना पएगा? गोले का अंदर वाला भाग पॉलिश करना पएगा। सो बाहर वाला भाग विल एक्ट एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तित सतह। ओवें ही उत्तल लेंस देखो, उत्तल लेंस दो गोलियां तो मिलके बनता है, ते अवतल भी।
ठीक है जी। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, हुण सानू ये पता चल गया भी अवतल दर्पण की परावर्तित सतह एक गोले का ही भाग है, उत्तल दर्पण की परावर्तित सतह एक गोले का ही भाग है, तो लैंस भी गोले के ही भाग ने। हुण नैक्सट असी अगे इस टॉपिक नूं समझण लई, इहदे प्रतिबिंबां नूं समझण लई सानू कुछ टर्म्स हैं जिहड़ियां पहलां पता होणीआं चाहीदियां ने, उन्हां टर्म्स ते असी चलदे हैं। हुण ये साडा, मैं दोनों ही डायग्राम्स लेके चलांगी, ये साडा अवतल दर्पण है, राइट। ते असी अवतल दर्पण दे एक कॉर्नर ते ए अते एक ते बी लिख दिंदे हैं। तो साडा ए बी की है, साडा ए बी इज डिनोटेड एज एपर्चर, एपर्चर ऑफ कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण इज convex mirror, उत्तल lens is convex lens and अवतल lens is concave lens. So first चीज aperture, second इस aperture दा जेड़ा center point है साडे mirror दा जेड़ा center है उसते असी लिखते हैं P, P is पोल, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰੁਵ भी कहा जाता है, पोल ਜਾਂ ਧਰੁਵ। ਇੱਥੇ भी ए बी इज द एपर्चर ऑफ द उत्तल दर्पण ते दिस इज पोल ਜਾਂ ਧਰੁਵ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ इस गोले का एक केंद्र सी, हर एक गोले का एक केंद्र हुंदा है, इसका केंद्र सी ये, इसका भी केंद्र सी ये, लेंस भी वेखदे हैं, ये मैं दोबारा ड्रॉ कर देनी है ताकि तुहानूं समझना ईजी होएगा। लेट मी ड्रॉ हेयर ऑल्सो। क्योंकि तुसी समझ ही चुके हो कि किवें बनया। सो ये दो सर्कल्स ने, इन्हां दा भी कोई सेंटर होएगा, सेंटर, राइट। सो दिस इज सेंटर जिन्हों असीं बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। सो साडा जिहड़ा अवतल दर्पण है जां उत्तल दर्पण है जां कॉन्वेक्स लेंस है जां कॉनकेव लेंस है, इन्हां दे विच साडे कोल की आ गए वक्रता केंद्र विच वी डिनोट बाय सी। तो सी की है साडे कोल वक्रता केंद्र, जिन्हों असीं इंग्लिश विच बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। हुण इत्थे देखो जी, अवतल दर्पण दा सेंटर ऑफ कर्वेचर उसदे परावर्तित सतह दे, उसदी परावर्तित सतह दे सामने है, ते इत्थे सेंटर ऑफ कर्वेचर उदी परावर्तित सतह दे पिछे है। इत्थे परावर्तित सतह दे सामने है, उत्तल दर्पण विच परावर्तित सतह दे पिछे है, ठीक है। सो एदा कित्थे है, इसदा सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज हेयर। मैं नाल दे नाल लेंस भी करांगी। पोल हुण एपर्चर ए पी है तो इत्थे पोल है ओ, लेंस का भी एक केंद्र बिंदु होएगा एंड उन्होंने असीं डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं ओ नाल। कॉन्वेक्स लेंस का भी एक केंद्र बिंदु है जिन्होंने असीं डिनोट करते हैं ओ नाल। ते इन्हां दा भी सेंटर ऑफ कर्वेचर वेखो, हुण दो गोलियां नूं मिल के बनया तो सी सी कित्थे है, आ देखो जे ए ओ पॉइंट है, हाँ ये साडा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सो सी अते सी समझ गए तुसीं। बट क्योंकि लेंस दे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर ने तो असीं C1 अते C2 डोनेट करांगे, C1 C2। ते जदों लेंस दे
ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ। An imaginary line that passes through the center of the convex lens ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ center of curvature ਦੋ ਹੋਣਗੇ and an imaginary line which is passing through the center is known as principal axis ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਨੇ C1 ਐਂਡ C2 ਆਫ ਦ ਲੈਂਸ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਰਰ ਤੇ ਆਓ। ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ C ਅਤੇ P ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਅਤੇ ਪੋਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। This is again the principal axis। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨ ਪੋਲ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ। Now what is PC ਜਾਂ CP? ਹੁਣ ਇਹ PC ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ C ਅਤੇ P ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ R ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? R ਦੇ ਨਾਲ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ curvature। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਰਪਣ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਮੇਜਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।